Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this another lesson. This time around, as you guys are all aware, हम लोगों ने patterns का जो है section शुरू किया हुआ है and this is lesson number 3. इससे पहले हम लोग दो lessons कर चुके हैं which have been on candlesticks, and now we are beginning to move towards price patterns और market structures जिसमें uh, जिसको बेसिकली इस कोर्स की क्रक्स भी कहा जा सकता है. दिस इज समथिंग जिसके अराउंड हम लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है इवेंचुअली बिल्ड अराउंड होगी. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एज यू गाइस आर ऑल अवेयर, इंडिकेटर्स और प्राइस मूवमेंट्स और स्ट्रक्चर्स, जो मूवमेंट्स होती हैं सारी प्राइस की, वो बॉयल डाउन करती हैं, लीड करती हैं हमें बेसिकली प्राइस पैटर्न्स की तरफ, जिसको इवेंचुअली हम लोग ट्रेड करेंगे. ठीक है, एंड पीछे जो कुछ पड़ा है, दिस विल ऑल बी सपोर्टिंग प्राइस पैटर्न्स या market structures, basically. And having that sort of information about candlesticks, indicators, trends, and all of that is necessary to be able to trade patterns. The only thing that's left before that is volume. And since when we're analyzing stocks, तो a lot of times I'm mentioning कि volume ऐसा है या volume ऐसा है या volume बहुत ज़्यादा spike कर गया है या volume support नहीं कर रहा. So obviously volume जो है, that is a key factor when trading. And as you guys are all aware, volume is something very important, because this is something which is calculated independent of price. अब हम price ले लें, उस पर हम trend बना लें, EMAs ले लें, या फिर indicators ले लें, जो मर्जी चीज़ ले लें, all of those are calculated out of price. Volume on the other hand is something independent, and it has a completely independent analysis of itself, and we want this to be supporting price when we are trading trends. When volume and prices disagree, that becomes problematic, and this is something which we don't want when we're trading a trend. Or maybe we want to have that dissonance among the both to trade a reversal or a probably weakening trend. So let's begin and see what we have in the lesson this time around. Oh, yeah, so let me just bring this over here. Okay, and let me select my pen and let's begin. Okay, so this lesson we are going to look at why we use volume. कि volume हम लोगों ने use क्या करना है, information हमें क्या देता है वो, और उसको हमने interpret किस तरह करना है when keeping our view towards price trends and patterns. कि volumes उसके अंदर किस तरह information add करते हैं and how we trade them. इसमें जो supplementary material, that's chapter number 7, technical analysis explained by Martin Pring. This is the book we have been following. इसमें page number 97 to 114. This is very elaborately written and बहुत डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है. So anyone who really wants to understand volumes can do so by looking at this video, and once done can go over this chapter, and I believe that would be enough to actually understand volume. Now the problem with volume is that reading is fine, but at the same time you need a lot of practice to interpret volume. ठीक है, क्योंकि ये उस तरह सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जिस तरह कि प्राइस को हम देखते हैं तो अच्छा इट्स ऑब्वियस कि अच्छा इस तरह एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है तो दैट्स फाइन. वॉल्यूम के अंदर ये है कि वॉल्यूम के अंदर इंटरप्रिटेशन जो है दैट कम्स अलोंग विद प्रैक्टिस. एंड फॉर इंस्टेंस, ट्रेडिंग वन स्क्रिप्ट जिसमें एवरेज वॉल्यूम लेट्स से 10 मिलियन लगता है, एंड देन ट्रेडिंग स्क्रिप्ट जिसमें एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन लगता है, मे बी 1 million can be more significant compared to 10 million, because we're talking about two different scripts. So when talking about volume, we should always look at relatives, not at absolutes. ठीक है, कहीं पे 10 million वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल when we're talking about MLCF, 1 million or 2 million is not a lot of volume, or 3 million, 4 million, 5 million even. But let's say when we're talking about a share like H car,
एच कार के अंदर इतना वॉल्यूम लगना इज absurd. ठीक है, so whenever you're looking at volume, make sure you look at in a relative perspective rather than an absolute perspective. So let's just jump onto the lesson and begin. Okay. Oh, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ignore the slide. Basic characteristics of volume. Like price, volume and analyze must be done so keeping in mind some ground rules. Obviously, वॉल्यूम को ट्रेड करने के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, उसमें एक दो तीन चीज़ें रूल्स हैं जो यू हैव टू रिमेंबर. नंबर वन इज प्राइस एंड वॉल्यूम मस्ट गो हैंड इन हैंड. What this means is that if prices are increasing, you want your volume bars to be generally increasing as well. ठीक है, बीच में एक आधी डिप आना, दैट्स फाइन, बट द जनरल थ्रस्ट ऑफ वॉल्यूम should also be up. इसी तरह when prices are going down, you want the volumes to be going down relatively. One or two bars of increased volume, that's fine, but your highs of the volume should be tilting down, showing you that as prices are moving down, there is no buyer interest. इसी तरह when prices are moving up, they want to be supported by high buying interest. High buying interest means that prices are likely to continue to go up. इसी तरह low interest on the buying side means that prices are likely to go down. And when you're talking about volume, make sure you look from the buyer's perspective and not from the sellers or short sellers perspective. ठीक है, कि इस तरह देखना है कि बाइंग इसको क्या सपोर्ट कर रही है या इसको सेल ऑफ को सपोर्ट कर रही है या नहीं. ठीक है, यहाँ पे दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स, यहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ बायर्स. दैट इज द ट्रेंड इन वॉल्यूम मस्ट अग्री. ठीक है, इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन अप ट्रेंड, वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीजिंग एज वेल. Similarly, during a downtrend, the volumes should shrink. ठीक है, दैट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड में हम लोग जा रहे हैं और एकदम से हाई वॉल्यूम बार्स आने लग जाती हैं, नॉट जस्ट वन और टू अनोमलीज बट लाइक कंसिस्टेंटली वॉल्यूम हाई होने लग जाता है, so that should be a strong warning sign that buyer interest is now being generated and most likely यहाँ से हमें अपसाइड जो है वो होती हुई शायद नजर आ जाए या एटलीस्ट पॉज इन द एग्रेसिव प्रेशर. इसी तरह when we're on the upside and volume start to drop, that is another red sign. So if price and volume disagree, that is the uptrend shows a fall in volumes or a downtrend shows a rise in volumes, it indicates weakness of the trend. Now you notice that I haven't used the word reversal. ठीक है, क्योंकि रिवर्सल के लिए ऑब्वियसली हम लोगों का क्राइटेरिया विल बी सेम. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस and prices move like this, hit, come back here, hit, come back here, hit, and like this, let's say move करती हैं और यहाँ पे आके let's say in this fall I have a rise in volume. ठीक है, I'm not going to predict a reversal right away. I would want the price to come here and then break above this to trigger an upside. ठीक है, the purpose of analyzing volume over here is that when I have shorts going on, I should get cautious over here, and if prices reverse, so I should cover early and wait for this area to be hit. अगर यहाँ पे rejection आती है to continue my shorts. This is what we have been doing throughout the past few months. कि अगर इस किस्म की चीज़ आती है हम एग्जिट ले लेते हैं और दोबारा अगर ट्रेंड लाइन से उसको हिट पड़ती है तो देन वी एंटर अगेन. सो वॉल्यूम इज अ प्रीकर्सर जो आपको पहले बता देता है कि इस किस्म का मूव जो है वो लाइकली हो सकता है. अब क्यों वॉल्यूम पे हम फोकस करते हैं लेट्स से इंडिकेटर्स उस पे नहीं करते, आई विल जस्ट कम राइट टू दैट. सो वॉल्यूम कैन से व्हाट द प्राइस कैन नॉट समटाइम्स. For instance, a bullish engulfing appearing on the trend top on higher price spectrum may indicate strength, but it is on low volumes per se. But if it is on low volume per se, it indicates a weak move. ठीक है, अब जिस तरह हम लोगों ने पीछे कैंडलस्टिक्स की, उसमें हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा था कि यार हम लोगों ने वॉल्यूम को भी एनालाइज करना है. अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता किसी चीज़ को, ठीक है, तो हम लोग शायद उस पर ट्रेड करने पे
वो ना हो, कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि व्हेन देयर इज अ हाई मूव इन प्राइसेस, आई वांट टू मेक श्योर दैट द पार्टिसिपेशन रेट इन इट हैज बीन हाई। व्हाई? बिकॉज लेट्स से अगर यहाँ से सेलिंग ट्रिगर होती है, so there will be this many people, let's say जिस पे प्राइस स्पेक्ट्रम जिस पे मूव हुआ है कि लेट्स से फ्रॉम 100 to 150 प्राइस मूव हुई है, एंड आई वांट इट टू बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स लाइक दिस, ताकि when prices come down there are a lot of people who actually have that Warren Buffett mindset कि यार मैं buy on dip करके यहाँ पे अब इसको प्राइस को स्टॉप अराउंड करूं। बट इफ प्राइस इज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, अब जैसे हम गैप्स की बात करते हैं, गैप थ्योरी हमने पढ़ी कि प्राइसेस मूव कर रही हैं विद गैप्स, दिस मींस देयर इज नो ट्रेडिंग टेकिंग प्लेस, so this is why prices come around and fill these gaps, this is because यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम लेट से हर कैप के ऊपर नॉर्मल वॉल्यूम इज 500,000 और हर कैप पे we had a volume of 1 million. So the chances of these gaps being filled decreases significantly. ठीक है, अगर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, the chances of these gaps being filling becomes higher because they are not supported by the buyers. So this is why gaps get filled because they are volumeless. तो अगर इसी तरह एक bullish engulfing candle आती है, it is weaker when compared to a bullish candle which appears with very high volume. ठीक है, unprecedented high volume on resistance or support indicates a blow off in a bull market or a panic sell off. This is also known as a selling climax in a bear market. This can give early signs of a trend reversal. What I mean by this is, let's say prices are moving like this and we reach at some point कि जो resistance line बनती है और let's say horizontal level भी बनता है और यहाँ पे volume जो है overall decrease हो जाते हैं significantly. सो दिस शोज मी दैट यहाँ पे एग्जॉशन जो है वो हो रही है, ये अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दिस शोज मी, गिव्स मी एन अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। इसी तरह अगर नीचे आ रही हो और एकदम से बहुत हाई वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाए, तो दैट शोज मी अ पॉसिबल अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। Okay, so this is the typical volume configuration which shows that volume and prices go hand in hand. Now अगर मैं यहाँ पे देखूँ, let's say prices are moving up, volumes are moving up as well, then they come down, it goes down as well, ठीक है, then again upward move and volume goes up and so on and so forth, same pattern जो है repeat हो रहा है। Now notice one thing कि overall volumes हाइज पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू वांट कि प्राइसेस जब इस तरह एक एंगल में ट्रेंड में मूव कर रही हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास इम्पल्स वेव्स पे वॉल्यूम का इंक्रीज होगा और जो करेक्शन है उसके ऊपर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट ओवरऑल आई वांट इट टू गो लाइक दिस कि इस तरह का एक ट्रेंड होना चाहिए, something like this which supports the fact that as prices are moving up, more and more people are joining in. Okay, so this is the configuration from bull to bear market. For example, अगर हम यहाँ पे देखें bull market में impulse पे volume लगता है, फिर pull back आता है, फिर again same story, and then notice when we shift to a bear market the configuration is still the same, ठीक है, कि डाउन साइड पे आते हुए वॉल्यूम डिक्रीज ही होता है और अप साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है अगेन स्टार्ट में, ठीक है। बट देन योर अपसाइड्स बिकम वीकर एंड वीकर, यहाँ पे यू हैव डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स एंड जब डिक्लाइन आती है प्राइसेस में यू हैव इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स। सो यू नोटिस व्हाट हैपेंस इज दैट पहले यहाँ पे इम्पल्स के ऊपर राइजिंग वॉल्यूम था, ठीक है, अब यहाँ पे बेरिश इम्पल्स के ऊपर राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। नाउ हाउ डू यू डिटरमिन दिस? ओवरऑल this volume will be increasing but at the same time it will be making lower highs, ठीक है। so overall participation rate will be contracting, एक बार को नहीं देखना या दो बार को नहीं देखना कि वो किस तरह की हैं, ओवरऑल मोमेंटम को देखना है। अगर लेट्स से you had
ओवर 100 मिलियन डेज यहाँ पे होते थे, ठीक है, और बुलिश मार्केट में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे होते, यहाँ पे कह लो, ठीक है, 100 मिलियन डेज यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, और हाइज जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो दिस डिक्रीज इन हाइज ऑफ वॉल्यूम्स with an increase in prices, rising highs of price is indicating weakness, and that eventually translates into a bearish market. अब यहाँ से अगर एक और impulse में खींचूं और इस तरह करूं, तो this will probably be indicated like this कि यहाँ पे prices drop होंगी when prices are moving up, volumes will be moving down, and then when prices are going down, volumes will be increasing, but they will be making lower highs, ठीक है, एक दो anomalies आ जाए, ठीक है, that's fine, but at the same time उसकी कोई logic होगी, सही है। let's say that's result announcement day, और like कोई panic news trigger है, something like that, there must be some sort of reasoning for panic volume days. अब जिस तरह अगर हम PSO की बात करें, PSO में panic volume day obviously था recently जब it went above 160 164 164 गया था, 163 गया था, फिर anyways कैप तक गया था because of a result, and then got shot down very crazily on the same day and we had huge volumes, so that was an anomaly, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें obviously exist करेंगी, but make sure when you're analyzing volume you do point that out. Okay, basic characteristics of volume. When looking at volume, one must not look at a single bar or on the intraday, daily or weekly, but the general distribution and the general thrust of prices. Thrust of prices की बात जब मैं करता हूँ तो उसमें एक सेकंड मैं इसकी बात करता हूँ कि ओवरऑल मोमेंटम प्राइसेस का क्या है। प्राइसेस आर मूविंग ऑन द अपसाइड and volumes are giving you lower highs at the same time कि overall decrease होते जा रहे हैं, तो that is showing me that participation is decreasing as we are reaching to new highs, so that is what is wrong and it needs to be in sync that यहाँ पे volume के highs जो हैं should be like this कि increasing highs होने चाहिए as prices are increasing। जब अगर यहाँ पे देखें और ये देखो ये भी इवन एक ये नहीं है लाजमी कि एक ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल द क्राइटेरिया इज सिंपल कि relatively volumes should be increasing, ठीक है, एटलीस्ट 1 to 1 का रेशो होना चाहिए कि लेट्स से इफ प्राइसेस आर मूविंग बाय 5-10%, तो वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग बाय 5-10% एज वेल, ठीक है। जस्ट कीप दैट criteria in your head when looking at volumes. At all times purchases equal sales, ठीक है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हर टाइम पे परचेज और सेल इक्वल होती है, डिमांड और सप्लाई है जिसके अंदर वेरिएशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्राइस खड़ी है एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली हायर, देन प्राइसेस विल मूव अप, ठीक है, और जैसे जैसे फिल होती जाएगी साथ साथ वॉल्यूम जो है वो बाहर आती जाएगी, ठीक है। Not be in equilibrium and increase in demand, excitement by bulls tend to lead to rise in prices till the demand is fulfilled completely. This leads to an increase in prices and volumes. Quite self-explanatory कि जब तक डिमांड अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो और फुलफिल ना हो रही हो तो प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग एंड वो जितने जितने ऑर्डर्स हैं वो आते जाते हैं और फिल होते जाते हैं। सो दिस इज व्हाई वी वांट दैट व्हेन प्राइसेस आर गोइंग अप वी वांट अ हायर डिमांड टू बी देयर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी वांट इट टू बी फिल्ड कि परचेज और सेल रेशो जो है वो भी हाई होना चाहिए, और वो हमें शो करता है कि यहाँ पे जो मूव है वो सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल है। दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ हैबिट कि वो बार बार सेटलमेंट रेशोज को देखते हैं कि यार वॉल्यूम तो हाई है, ठीक है, बट सेटलमेंट रेशो क्या कह रहा है कि क्या सेटलमेंट रेशो जो है इज इट गोइंग अप एज वेल। तो सेटलमेंट रेशो इज समथिंग जिसकी कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस वैसे नहीं है at least in PSX, but that shows us कि कितने लोग बाय करके दिन में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100 मिलियन का वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है, एंड इट हैज लेट्स से सेटलमेंट रेशो ऑफ 50%, so that means only the 50% of that volume is actually which has been carry forward to the next day, ठीक है। How on the other hand
if the settlement ratio is, let's say, 100%, that shows that anyone who bought today held it throughout the day, और ये volume जो है that shows more significance. तो settlement ratio को as a precursor for volume significance या precursor for trend reversals देखा जा सकता है, but at the absolute top और bottom. Midway में settlement ratio शायद इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है. फिर एनीवेज उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. However, when looking at downtrend per se, volumes tend to contract as prices progress. ठीक है, कि जैसे जैसे prices नीचे मूव होती हैं वॉल्यूम कंट्रैक्ट करता है. दिस इज बिकॉज देयर इज नो डिमांड टू फुलफिल द सप्लाई साइड. दिस, अब जिस तरह हम लोग शॉर्ट्स प्लेस कर रहे होते हैं या सेलिंग ऑर्डर्स डाल रहे होते हैं, अब हमेशा बायर्स पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है. लेट्स से हम सेल ऑफ एक आ रहा है मार्केट में, और अगर बायर नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, नो वन वुड वांट टू बाय. सॉरी, आई मीन when there is no buyer, no one will buy. ठीक है, obviously. So that means the people on the supply side will panic and would want to sell quicker and quicker. ठीक है, कि बस हम निकल जाएं इसमें से. So when they want that comfort, they would probably end up selling it cheaper. उसकी वजह से prices डाउन ट्रेंड में जाती हैं. अगर एकदम से बायर आ जाते हैं तो बायर शो करता है कि सप्लाई साइड अब एब्जॉर्ब होने लग गई है, ठीक है. इसलिए हम लोग बार बार अपने एनालिसिस में वर्ड यूज करते हैं, ये जो वॉल्यूम है ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है. सो दैट एब्जॉर्प्शन एक्चुअली शोज अस कि बायर का इंटरेस्ट आ रहा है हाई वॉल्यूम. इसीलिए हम लोग अगर एक डाउन ट्रेंड को देखें तो उसके अंदर इट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी प्रेफरेबल, सही है, एज परस्पेक्टिव ऑफ ट्रेंड ट्रेडर्स. अब वैसे अगर जनरल कंडीशन देखी जाए, यस पीपल से कि यार वॉल्यूम आए डाउन ट्रेंड के अंदर ताकि ये खत्म हो, ठीक है. If upside move is not supported by volume, it should be taken as an immediate sign of caution. ठीक है, कि अगर अपसाइड मूव आ रहा है और हाई जो हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, लोअर होने लग जाते हैं, तो देन दैट इज an immediate sign of caution. When interpreting volumes, अब इस एग्जाम्पल हम इसकी आगे देखेंगे. When interpreting volumes, one must always look from the buyer's perspective. ठीक है, हमेशा, अच्छा, हमेशा इसमें याद रखना है कि बायर्स पर्सपेक्टिव से देखना है, सेलिंग से नहीं देखना. ओवरऑल यस, सेलर की एग्रेसिवनेस नजर आती है, बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम एंड नॉट लेट्स से एक सिंगल इम्पल्स और सिंगल मूवमेंट. ओके, सो दिस इज KSE एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम का एक क्लियर प्रोफाइल है. यहाँ से अगर प्राइसेस को हम देखें तो दे वेंट अप एंड करेक्टेड, देन वेंट अप अगेन एंड देन करेक्टेड, और वॉल्यूम उसके साथ उसी तरह मूव कर रहा है. इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, ठीक है. अब यहाँ तक देखो एक इम्पल्स मूव है, उसके बाद क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ चॉपी जोन आती है और उसके अंदर वॉल्यूम अगेन ड्रॉप होता है, सही है, टिल दिस पॉइंट यहाँ तक. एंड देन वी हैव अनदर इम्पल्स, प्राइसेस जहाँ पे ऊपर जाती हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद एक और करेक्शन आती है. अब नाउ फोकस हाउ द हाइज आर स्लाइटली हायर, ठीक है, एक स्लाइट हायर जो कंडेंसेशन है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. अब उस पे keep the focus over here. Now when prices are decreasing, again same story is being repeated. Now look at what happened over here. अगर सिर्फ वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, इस मूव तक मेरे पास टिपिकल हाइज समवेयर अराउंड यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है. This time around, I have prices moving from 32,000 to 53,000. That is how much percentage return? That is more than 65% return. That is 65% rise in prices, but at the same time, my volume rise is not that significant. कि volume again similar highs कोई touch कर रहा है, which okay I will take as normal, ठीक है, कि let's say मैं कहता हूँ कि ये normal है, but look at how we only have a single bar over there
मेजॉरिटी क्लस्टर नीचे गया, लेट्स से कि थ्रस्ट अभी भी ठीक है, आई एम कमिंग हेयर, और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ 50,000 वाले पे, वहां से वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बिफोर वी इवन गेट टू द 53,000 टॉप, we get a slight strong decline in volume, so that is showing me that यहाँ पे smart money का exit हुआ है, prices dipped and the last upside was not supported by volumes, ठीक है, कि वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये मूव सस्टेन नहीं हुआ एंड इट लेड टू अ लॉन्ग बेरिश रैली, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, व्हेन यू लुकिंग एट वीकली चार्ट्स, ऑब्वियसली उसकी इंटरप्रिटेशन का इम्पैक्ट मल्टीपल वीक्स पे चलेगा या 1-2 वीक्स पे, वट एवर। डे को देखोगे तो उसका कुछ दिनों के लिए होगा, आवर्स का कुछ आवर्स के लिए होगा। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या कहते हैं, एनी एनालिसिस यू मेक डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम यू आर मेकिंग। तो अब ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट पे वॉल्यूम लास्ट अपसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, इस पूरे मूव के अंदर वॉल्यूम की जो मोमेंटम है दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। और प्रॉब्ली इस फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुई और यहाँ पे आके इसके बाद हाई जो नेक्स्ट लगा उसमें वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। एंड नाउ लुक एट व्हाट हैपेंस टू वॉल्यूम, इम्पल्स, I have a decrease in volumes, ठीक है। अब उसके बाद obviously again upside, वॉल्यूम ऊपर आता है, फिर अब ये देखो फाइनल अपसाइड जो है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे again वॉल्यूम decreases, shrinks, ठीक है। दैट इज शोइंग मी व्हाट, अगेन एग्जॉशन। अब उसके बाद प्राइसेस जब नीचे आना शुरू होती हैं, वॉल्यूम्स इंक्रीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ नोटिस व्हाट हैज हैपेंड, कि अब जिस तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टिपिकली बुलिश मार्केट से आपके हाईज जो हैं वो छोटे होने लग जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल। नाउ लेट्स से वी आर गोइंग थ्रू दिस एंड लेट्स से प्राइस डिप्स डाउन अगेन, और यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन वी हैव a huge surge in volume. What will that show? That will show there has been a strong absorption of selling over here, and someone has taken this as a strong horizontal base, let's say, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग हुई है। दिस कैन शो मी कि यहाँ से प्राइसेस कैन मूव ऑन द अपसाइड, एंड माय क्राइटेरिया लेट्स से वुड बी, एक कोई मूविंग एवरेज लेट्स से यूं आ रही है जो इन सारे टॉप्स को टच कर रही है, तो इसका ब्रेक होना मेरा उसके पास वो होगा, मोमेंटम का क्या चेंज होने का ट्रिगर होगा। वॉल्यूम जब निकलता है आई वुड वांट टू कवर माय शॉर्ट्स, ओके। सो this is again a demonstration of that same thing. As prices are making new highs, the volume must make new highs as well. In case there are declining volumes with rising prices, it is known as a volume divergence, and price might reverse soon. Okay, the word might is here because obviously there can be differences. For example, when we're talking about penny stocks, तो उसके अंदर इस किस्म की वेरिएशन आ सकती है जो वॉल्यूम से शायद सपोर्टेड ना हो, ठीक है। और yeah. Okay, so that might not be supported by volumes, and if I can see again ABC highs and highs जो हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, पोटेंशियली कोई इसको वैसे देखे, अगर लेट्स से इतने से पीरियड को देख रहा है यहाँ से यूं और यूं, उसको क्या नजर आएगा, ओ जी प्राइसेस जब नीचे थी तो वॉल्यूम नीचे था, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। जब लोग प्राइसेस को एनालाइज करते हैं वो इतने से टनल को देखते हैं, टनल विजन कर लेते हैं अपना, और इतनी सी चीज को ऑब्जर्व करके कहते हैं वॉल्यूम्स तो राइज हो रहे हैं, बट अगर मैं रिलेटिव सेंस में देखूं पिछले 3 हाइज पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज शोइंग मी एज प्राइसेस आर क्लाइंबिंग higher and higher, the momentum is being lost. So this is one of the easiest way to read volume, इज टू सी कि वॉल्यूम क्या प्राइसेस को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। और 53,000 पे अगर कोई याद करे तो यहाँ पे हमारे पास वो भी था, बेरिश डाइवर्जेंस भी थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑब्वियसली 53,000 वाली पीक पे प्राइसेस आर गोइंग अप, वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन, दिस इज नंबर वन डाइवर्जेंस, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर भी डाइवर्जेंस है, इंडिकेटर्स में भी डाइवर्जेंस थी, ओवर एक्सटेंडेड पैराबोलिक मूव भी था,
बुरा लगता होगा आप लोगों को भी 53,000 देख के, मुझे भी लगता है कभी कभी कि अगर ये टाइम वापस आ जाए, आई वुड हैव शॉर्ट सोल्ड विद माय एवरीथिंग बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ से पूरा शॉर्ट करके मार्केट वुड हैव कम डाउन। ओके, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होती है, उसको यूज किस तरह करना है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस इन अ बुल ट्रेंड अकर्स बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट ऑफ द बुल्स, ठीक है। अगेन हमने इसमें बायर्स पर्सपेक्टिव से देखना है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, bullish divergence in a bull trend occurs not because of overexcitement of bulls but rather selling pressure, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ कि जब मैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस की बात करता हूँ, राइट एट द टॉप आई डोंट थिंक अबाउट बायर्स बट रादर सेलर्स। अब क्या होता है, प्राइसेस इस तरह मूव कर रही हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन बेयर्स को लगता है कि यार प्राइसेस बहुत क्रेजीली मूव कर रही हैं, एक काम करते हैं, प्राइसेस को और ऊपर आने देते हैं, फिर शॉर्ट करेंगे, अभी हम बीच में नहीं घुसते, ठीक है, या अभी हम सेल नहीं करते। सो दे जस्ट साइड लाइन, एंड सिंस यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सप्लाई और डिमांड का, विच शोज दैट वॉल्यूम लेट्स से सप्लाई इतनी है नहीं, और ऑर्डर्स अगर फुलफिल करने हैं तो प्राइसेस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो बुल्स क्या करते हैं, ऊपर 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 ऑर्डर्स लगाते रहते हैं इन द होप्स के अब फिल होगा, अब फिल होगा, अब फिल होगा, एंड दे थिंक दैट दिस मोमेंटम is gonna keep growing, and all of a sudden bears kick in at the top, जहाँ पे सारी डिमांड ऑलरेडी ओवर एक स्ट्रेच्ड जोन में फुलफिल हो चुकी होती है, ठीक है, and then they place their selling orders and prices can return towards the downside, ठीक है। अब देखो एक चीज, लेट्स से अगर प्राइसेस यूं मूव कर रही हैं एंड इस नॉर्मल कोर्स में देखूं तो इतनी सी डिस्ट्रीब्यूशन में 100 मिलियन का वॉल्यूम लग रहा है, देन ऑल ऑफ अ सडन बेयर्स से कि यार छोड़ो इसको, आने दो जरा प्राइसेस को ऊपर, तो दे सिट अराउंड एंड प्राइसेस गो दिस दिस दिस। अब इतने बड़े लेट्स से स्पेक्ट्रम पे, इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन पे, अगर मैं सॉरी इतनी बड़ी मूव पे अगर मैं वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, सेम 100 मिलियन वुड नॉट हैव द सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर एक छोटे से मूव पे देखूं लेट्स से लाइक दिस, और यहाँ पे 100 मिलियन का वॉल्यूम लगे, दैट इज मच मच मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज एट अ सिंगल 10-20 पैसा price point, let's say I have people who have an interest of 100 million compared to this जहाँ पे इतने लंबे पॉइंट ऑफ व्यू पे मूव पे 100 मिलियन का बाइंग इंटरेस्ट है, ठीक है। सो दिस शोज मी दैट दिस मूव प्रॉब्ली यहाँ से प्राइसेस ब्रेक करना एटलीस्ट हाफ वे तक या यहाँ तक is not going to be a hard job compared to this, ठीक है। You might not be able to break this but might be able to break this. So if volume is clustered into place, like इस तरह एक छोटी सी जोन के अंदर हाई वॉल्यूम क्लस्टर हो जाता है प्राइसेस का, तो दैट शोज दैट दिस area has become significant. So this indicates that sooner or later the bears will kick in, ठीक है। ये ओवर एक्साइटमेंट जब बुल्स की होती है, बेयर्स स्टेप इन साइडलाइन कर जाते हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन दे थ्रस्ट इन। अब जिस तरह हमारे पास ये वाली एग्जांपल है कि वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट जब हम लास्ट टॉप की तरफ जा रहे हैं, बेयर्स क्या कहते हैं, यार यहाँ पे आ गए हैं, अभी और एक मूव लेंगे बुल्स, आने तो जरा, ठीक है। So this was around 48,000, 47,500. They walked aside and 6,000 points went up and volumes decreased, ठीक है। Bears ने basically participation नहीं की in the hopes कि let the prices rise and then we will kick in, ठीक है। So if we can see we have 2-3 volume bars on the bearish side which show me slight increase in volumes, ठीक है, very slight increase in volumes. So that is showing me कि यहाँ पे selling pressure जो है वो kick in कर रहा है। The divergence period can extend well beyond two highs, ठीक है। एक ये मिसकंसेप्शन, जब हम इंडिकेटर्स और प्राइस की डाइवर्जेंस देख रहे होते हैं, ये भी एक चीज लोग गलत करते हैं कि उनको लगता है एक डाइवर्जेंस आ गई है तो बस अब इतना ही है, कहानी खत्म, अब यहाँ से शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डाइवर्जेंसेस कैन अकर एट लेट्स से 2 3 4 5 6 7 10 टाइम्स, कि अब अगर S&P की बात करें हम लोग 500 की, so that has been divergent for a very long period of time. The thing behind that is that the longer the period of divergence, the stronger the move is likely going to be. So this is something you have to keep in mind. Let's say prices इस तरह divergence में आ रही हैं, so what I want is that still the criteria is still same to break free from the trend channel, but I know the move is going to be strengthier. तो अगर मेरे पास उसके साथ कोई और confluencing
ट्रिगर आ जाता है, लेट्स से मेरे पास मैकडी क्रॉस ओवर आ जाता है या ईएमए ब्रेक आ जाता है, तो देन आई वुड वांट टू शॉर्ट इट। और इसी तरह अगर नीचे जा रहे हैं तो आई वुड वांट टू बाय इट। The divergence period can extend well beyond two highs. However, the longer the divergence period, the steeper the fall will be. ठीक है, अभी हम लोग obviously bullish perspective से देख रहे हैं कि अगर prices ऊपर जा रही हो, bears के लिए completely opposite you can simply apply. This is because the price of a commodity script has overextended on a move which is not supported by momentum at all. ठीक है, डाइवर्जेंस अगर होती है कि मोमेंटम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, and if selling pressure kicks in there will be no Warren Buffets to buy the dip. ठीक है, ये एक जोक है लेकिन यही है बेसिकली। दिस मीन्स इज दैट ओवर एक्सटेंशन अगर हो जाए जिस तरह यहाँ पे PSX में हुई और वॉल्यूम डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करे और अगर मूव आता है फिर वहां से सेलिंग प्रेशर किक इन होता है, तो इसको स्टॉप करने के लिए सिंस द रेंज इज वेरी ब्रॉड देयर वोंट बी अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, अब पहला स्टॉप अगर मैं देखूं इंडेक्स का जाके कहीं यहाँ पे लगा है, एंड इफ यू कैन सी दिस इज द सेम एरिया जहां से कंप्लीट यूं वर्टिकल मूव इंडेक्स का एक जनरेट हुआ था ऑन particularly the same volume as before, which meant that this move was not very strong। और यहाँ से नीचे एक दफा पूरे हम thoroughly बड़ी वर्टिकल फॉल में आए थे। ठीक है, कि 53,000 to 36,000 that is almost how much percentage, 10 20 30 40 या अराउंड 35%। ठीक है, 35% का मूव बड़ी स्ट्रॉन्ग से नीचे आया था और उसके बाद अगेन वी वेंट अप टू दिस एरिया एंड केम बैक डाउन। सो दिस बिकेम अ स्ट्रॉन्ग जोन बिकॉज यहाँ से वर्टिकल मूव शुरू हुआ था, इससे ऊपर ऊपर कुछ भी सपोर्टिंग नहीं था तो मूव टुवर्ड्स दिस एरिया वाज प्रीटी ऑब्वियस। Generally, after a prolonged negative volume divergence, you are likely to see a volume surge once the uptrend breaks। ठीक है, ये इसको हम लोग ऑब्वियसली देखते हैं, इसका मतलब ये है कि लेट्स से इस तरह प्राइसेस मूव कर रही हैं, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही प्राइसेस यहाँ से ब्रेक करेंगी तो वॉल्यूम में एक सर्ज जो है वो नजर आ सकती है। ठीक है, अब से PSX के डायनामिक्स थोड़े से ऐसे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर्स नहीं नजर आते हमें, जैसे वो जो क्लस्टर्स एटलीस्ट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, सो खैर द पॉइंट इज व्हेन talking about trends which are supported by which are not supported by volume and have negative volume divergences, whenever they break off from their support line, और इसी तरह अगर bearish में हम लोग break off the resistance line की बात करें, then we have a surge in volume that shows me a potential move that might be sustainable। इसीलिए जब भी हम लोग लेट्स से ट्रेंड लाइंस की बात कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द कोर्स वर्क, मैं बात करता हूँ कि ओ यार ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और अब वॉल्यूम किक इन हुआ है, तो दैट इज वॉल्यूम इज रोलिंग इन या वॉल्यूम इज किकिंग इन, दैट शोज मी दैट यहाँ पे पैनिक इंड्यूस हो रहा है या यूफोरिया इंड्यूस हो रहा है। This indicates mass panic and exits along with short sell orders। Does this mean that you don't trade the upside at all? ऑफ कोर्स नॉट। कि लेट्स से अगर ये मूव नेगेटिव वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ है तो क्या मैं इस पूरे को ट्रेड ही ना करूं? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, एग्जिट इसमें आपने ट्रेड कर सकते हो क्योंकि PSX के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट के मूव है क्या, वो सपोर्टेड नहीं है ओवरऑल, उसके साथ ओवर एक्साइटेड नहीं होना, मनी मैनेजमेंट सही से करनी है, और रिस्क उसके एसोसिएटेड जो भी हैं you have to follow, make sure you acknowledge them, and you should have a clear cut exit plan in case the move violates on price action basis। या अगर अब मैं इस मूव को देखूं तो अगर मेरे पास वॉल्यूम डाइवर्जेंस लेट्स से थ्रू आउट आ रही है, आई कैन स्टिल ट्रेड इट विद द माइंडसेट कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आई विल एग्जिट। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अब दिस इज DG Khan Cement। अब DG Khan Cement is an interesting case because यहाँ पे volume is completely opposite of the typical move that should be। अब पहला move में अगर देखूं जो upside का, yes that's supported by volume, ठीक है, but उसके बाद ये वाला move यहाँ से लेके यहाँ तक we have declining volumes, हालांकि this should be increasing, and उसके बाद जो अपसाइड आती है slightly supported by higher volumes, then again इस point forward से यहाँ तक peak तक I have again declining volume। So this is showing me
दैट इसके अंदर वॉल्यूम डाइवर्जेंस है और स्ट्रेंथ नहीं है, बट एट द सेम टाइम डीजीकेसी वेंट फ्रॉम let's say 82 to 240. Do I want to miss that move? Of course not. ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रख लेता हूँ whatever, और जो भी अपनी EMA से डिफाइन कर लेता हूँ जितना भी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे मिडिल में एक और ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ जो मुझे सेकंड एरिया दिखा रही है, whatever I want to keep, but I want to have a clear cut exit plan. Let's say when I'm trading I would want कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, तो आई वुड वांट टू एग्जिट, ठीक है। लेट्स से प्राइस गो डाउन, क्रैक दिस एंड आई एग्जिट। सो एनीवेज अगेन यहाँ पे वॉल्यूम्स राइज करते हैं, ओवरऑल यहाँ तक डिक्रीज करते हैं, देन दे अगेन इंक्रीज, और इंक्रीज कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बेरिश वेव के ऊपर कर रहे हैं। देन द लास्ट मूव अप इज बलिस्टिक्स, और उसके ऊपर वॉल्यूम्स अगेन डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। Now what is happening is when prices are coming down, volumes are increasing, and the moment I have a break of this trend line, I have a surge in volume, a slight surge in volumes, ठीक है। एंड दिस इज शोइंग मी कि यहाँ पे एक पैनिक जो है वो इंड्यूस हो रहा है। और नाउ वॉच कि जिस तरह ये बुलिश रैली ऑलमोस्ट वर्टिकलिश सॉर्ट ऑफ थी, उसी प्रेशर के साथ सेलिंग केक इन हुई है एंड कंपेयर्ड विद लोअर वॉल्यूम्स। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं देखूं तो डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डिक्रीजिंग थ्रू आउट द ट्रेंड टिल दिस पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिश मार्केट के अंदर इट इज एक्टिंग द ऑपोजिट, ठीक है। So eventually the trend will reverse, but I need to have that trend line in place or something in place which if broken I would want to stop shorting it, ठीक है। So when volume divergences occur, understand the risks, understand that this move is not extremely healthy, ठीक है, but you can still trade it with an exit plan on price action. So volume is giving you an information on a precursor कि जैसे जैसे prices ऊपर जा रही हैं यहाँ पे participation decrease होती जा रही है, and let's say who bought let's say 20 30 50 million over here could probably not have dumped that over here। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक और चीज हो रही है बहुत अच्छी कि लास्ट मूव के बाद आई हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, अ लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पे डंपिंग हुई है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट डबल टॉप सिचुएशन भी बन रही है मेरे पास, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि डबल टॉप भी बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज शोइंग मी कि यहाँ पे मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एंड लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी ऑब्वियसली एक साइन होता है कि प्राइस रिवर्सल जो है वो अकर कर सकता है, ठीक है। हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, बट उसको चर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। लो वॉल्यूम के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर लेट्स से ये यहाँ से ब्रेक कर जाती तो आई वुड हैव एग्जिट, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेक कर जाती आई वुड हैव एग्जिट के दो तीन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि हायर हाई हायर लो ब्रेक हो, EMA ब्रेक हो, कोई बॉक्स रेंज ब्रेक हो, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, जो भी मैं क्राइटेरिया सेट करना चाहता हूँ आई कैन सेट इट ओवर हियर। वंस दैट वायलेट्स आई वांट टू एग्जिट द पोजीशंस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग अगेन अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल हमने पहले भी ट्रेड किया। इसको अगर हम देखें तो ये रिलेटिवली कंपेयर टू डीजीकेसी में जिस तरह के वॉल्यूम लगते थे नेटसोल में नहीं लगते। सो इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो अगेन एज प्राइसेस आर राइजिंग वॉल्यूम्स आर राइजिंग, डिक्लाइन पे अगेन डिक्लाइन, राइज डिक्लाइन, वी हैव दिस फेज गोइंग ऑन। बट इस पॉइंट से लेके रफली इस पॉइंट तक, बल्कि इस पॉइंट तक क्या आगे थ्रू आउट मेरे पास वॉल्यूम उस तरह इंक्रीज नहीं हुआ। बट अगर मैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखूं इसकी वॉल्यूम है ही इतना, ठीक है, रेंज ही उस जोन में कर रहा है। तो ओके द मूव इज फाइन, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यार यहाँ तक बार होनी चाहिए वॉल्यूम की या यहाँ तक, यू हैव टू कीप इट रिलेटिव। नाउ वॉल्यूम डाइवर्जेंसेस आर देयर कि यहाँ पे हाइज देखूं तो ये ओके मेकिंग अ हाई, but यहाँ पे the next highs are not supported by rising highs. I want this to be on an increasing trend. And what happens around right at the last moment is that volume is saturating completely, ठीक है, कि वॉल्यूम यहाँ पे एक्सट्रीमली सैचुरेट हो रहा है और अब मेरे पास बेरिश वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। कि जहाँ जहाँ पे रेड कैंडल्स हैं वहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, कैंडल साइज इज इंक्रीजिंग एंड एग्जिट प्लान मेरा क्या है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए या यहाँ पे हम लोगों ने जितना किया था हाई 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 लो की फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, जो ब्रेक होती है रफली आई थिंक हाई लो हाई 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 लो समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। जैसे ये और उसके बाद देखो
it straight away gap down. And now see what's happening. कि जैसे ही अब यहाँ पे obviously this many people got trapped. अब यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, once the price breaks through it comes back, tests the same area, and then prices start to move quickly and the volume surges. The volume is now surging toward the downside. So this is showing me that bears have taken over. कि obviously इतनी देर से पहले ही उसने warning sign यहाँ पे दे दिया था around 160s, 150s, 160s compared to this move. And now when I look at RSI alongside, I can see divergences in price as well. कि यहाँ पे एक high बन रहा है, यहाँ पे high बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे high बन रहा है. And this is completely not supported by indicators as well, because I have a constant divergence being made that is going on throughout this till this period, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई RSI की, एक अपवर्ड स्पाइक मेरे पास मुझे नज़र आया रफली फ्रॉम 68 69 to 90 area. ओके, सो अगेन PAL वॉल्यूम्स हमें अगेन यहाँ पे वार्निंग साइन दे रहे हैं कि जो लास्ट मूव था 70 से लेके 120 तक. नाउ फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव this is a huge move and I don't want to miss it. Obviously I will trade it with a clear cut exit plan कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो I will exit. Now when I look at volumes, however, volumes क्या कर रहे हैं, volumes are not showing me a very clear inside trend, but at the same time they have a downside direction, which shows that as prices are moving up, the interest is being lost, obviously. ठीक है, so that is showing me कि interest जो है वो lose होता जा रहा है. यहाँ पे देखो price के अंदर भी एक strong divergence exist करती है, ठीक है. and what अच्छा अब यहाँ पे notice करो, volume last move around पे मेरे पास yes it did increase, in fact यहाँ पे highest volume था with a spinning top with relatively much higher volume compared to the entire last move, with bearish divergence on the indicators. After that prices come down and volumes shrink as well. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ब्रेक करता है यहाँ से, ठीक है, इस ब्रेक पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम्स गेट हिट ओवर हियर. यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इस क्लस्टर में distribution हुई, then prices are moving up again and volumes are decreasing. ठीक है, so this is showing me that the upside is not being supported, and right on the resistance line I have a surge in volumes. ठीक है, कि टेस्ट पे surge हुआ है. अब this shows me that यहाँ पे sellers have kicked in, और ये aggression मुझे throughout आगे वॉल्यूम में दोबारा नजर आता है. उसके बाद क्या होता है, एक वर्टिकल फॉल, और वॉल्यूम को देखूं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज शोइंग मी कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है एंड देयर इज नो बाइंग इंटरेस्ट. सो दिस इज शोइंग मी दैट इन फैक्ट द ट्रेंड हैज कम्प्लीटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द बेरिश साइड. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वॉल्यूम्स जो हैं लोअर हाई से पहले ही इंडिकेट कर रहे थे कि भाई बस कर जा, ठीक है, कि अब और ऊपर नहीं जाएंगे. वन आइडिया इज टू हैव अ स्टैंडर्ड डिविएशन रूल कि याद रखो, अब इस तरह अगर एक चैनल में मूव कर रही हैं प्राइसेस, अगर एकदम से शार्पली अपसाइड पे मूव करने लग जाती हैं चैनल एग्जिट करके और डिविएट कर जाती हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन से, ठीक है, दैट इज अ वार्निंग साइन. ठीक है, बी इट शॉर्ट टर्म चार्ट, बी इट लॉन्ग टर्म चार्ट, ये एक वार्निंग साइन हमेशा होता है कि डिविएशन कितनी है. अब वॉल्यूम के ऊपर उसके साथ साथ लोअर हाइज बन रहे हो तो दैट इज इवन मोर कंसर्निंग बिकॉज आई डोंट हैव अ पार्टिसिपेशन ओवर. ओके, अब इसमें एक चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समथिंग विच वी हैव बीन स्टडिंग व्हेन वी आर एनालाइजिंग मार्केट्स के, मैं बार बार मेंशन भी करता हूँ, और इवन ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई हैव मेंशन्ड अ लॉट, इज द पैराबोलिक मूव. ठीक है, पैराबोलिक मूव क्या होता है, और उसको पैराबोलिक बेसिकली ब्लो ऑफ होता है बुलिश मार्केट में. सेल ऑफ के वर्ड को बेसिकली पैराबोलिक सेल ऑफ नहीं होता, इट्स कॉल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स और पैनिक सेलिंग. ठीक है, I just refer to the shape. Name doesn't really matter. Okay, anyways, while we have talked how volume and price go hand in hand, however, sometimes tops and bottoms, this can be misleading.
ठीक है, कि समटाइम्स जिस तरह अब हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा कि यार नहीं, जब प्राइसेस एक मिनट कहाँ पे गया, पीछे जाते हैं ना जरा, हाँ इस तरह कि अगर लेट से ये मैं अभी लेट से इससे आगे चार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। सो ये वाला कि वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, हायर हाइज बना रहे होते हैं, और लेट्स से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ रफली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहूँ कि लेट्स से हम कह भी देते हैं कि एक हायर हाइज बन रहे हैं, तो मैं कहूँगा यार ये मूव सपोर्टेड है, बट समटाइम्स अराउंड दिस कैन एक्चुअली बाइट यू इन द एस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पैराबोलिक मूव्स और सेल ऑफ में वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंटली परफॉर्म करता है एंड वी हैव टू कीप एन आई फॉर इट, ठीक है। अब parabolic blow-offs happen when prices arch too high with an overextended standard deviation. अब इसका मतलब क्या है, एक मिनट अगर मैं पीछे जाऊं PAL के केस में, लेट से प्राइसेस मूव करती थी यार, दे यूज्ड टू मूव लेट से 1 or 2 deviations away और वापस आ जाती थी। नाउ लुक एट हाउ prices are generally moving and then all of a sudden book completely on the upside के बहुत ज़्यादा ओवर आर्च हो गई, ओवर एक्सटेंड हो गई from a long term trend line and then they come here and hit it like this। और यही चीज़ मेरे पास नेटसोल में भी हो रही है, ओवर एक्सटेंशन, उससे पहले डीजी खान में भी हो रही है कि अगर रफली देखें हम तो इतनी ज़्यादा नहीं है, डीजी में इतनी ज़्यादा नहीं है, PAL वगैरह में ज़्यादा थी, ठीक है। और इंडेक्स में अगर देखें, इंडेक्स में तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की है कि इस तरह मूव्स जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन लुक vertical upside, so this is showing me that the index is overarching, ठीक है, with an overextended standard deviation and volumes climb to an unprecedented levels। अब प्राइसेस अगर एकदम से शूट करती हैं और वॉल्यूम्स एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई का मतलब कि लाइक पास्ट में मैंने शायद लेट्स से कि इन द रीसेंट पास्ट मैंने वो लेवल्स ना देखे हों, तो देन दैट इज कंसर्निंग एज वेल। कि फॉर एग्जांपल अगर हम PSX की बात कर रहे हैं और लेट्स से यहाँ पे वॉल्यूम्स कोई स्काई रॉकेट करने लग जाते हैं इन लेवल्स पे, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन इस पीक के ऊपर, सिर्फ इस पीक के ऊपर, ये जो क्लस्टर है यहाँ पे, ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ यहाँ पे आके ओवर आर्च कर जाए और प्राइसेस के ऊपर मेरे पास डाइवर्जेंस हो, देन आई वुड से कि ये पैराबोलिक मूव इज सपोर्टेड बाय अ ब्लो ऑफ एज वेल, कि यहाँ पे ब्लो ऑफ हुआ है, ठीक है। ब्लो ऑफ क्या होता है वो मैं बताता हूँ। Okay, and volumes climb to unprecedented levels. Such a move is almost vertical. Post this prices and volume contract sharply, ठीक है, कि इस किस्म की सिचुएशन के बाद अगले पेज पे चार्ट्स है, उसके बाद देखते हैं। This is volumes and prices contract right after this move। Contract का मतलब ये reduce हो जाते हैं। This is generally what we call the smart money dump, कि यहाँ पे डंप जो है वो लिया गया है, क्योंकि जब अगर इतनी ज़्यादा आपके पास लिक्विडिटी आए तो उसको कैश इन करते हैं स्मार्ट मनी में। इसी तरह अ पैराबोलिक सेल ऑफ which is basically known as a selling climax on the other hand is a vertical dead drop in the price levels but a surge in volumes, कि अगर प्राइसेस लेट से यूं मूव कर रही हैं एक नेचुरल अपनी जोन में और एकदम से यूं चलते चलते यूं गिरती हैं, ठीक है, और मैसिव वॉल्यूम लगना शुरू हो जाता है लेट से right right around this area, so this means that the current sell off is probably likely going to reverse, ठीक है। कि अभी हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो this would make much more sense। A dead drop in price levels but a surge in volume, this shows a rise in interest of buyers। A parabolic sell off is followed by a sharp price rise but not so convincing volumes, ठीक है। इस चीज को देखो, this is important। जनरली हम क्या कहते हैं कि जब प्राइसेस रिवर्स करें तो सर्ज इन वॉल्यूम होना चाहिए, but parabolic sell-offs are usually not supported by huge chunks of volumes। प्राइसेस इस तरह नीचे आती हैं, एकदम डेड ड्रॉप करती हैं इतने बड़े जोन में। अब जिस तरह इफ़ यू गाइस कैन रिकॉल, हम प्राइस एक्शन जब पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि वॉल्यूम सिर्फ उस पॉइंट पे नहीं देखना, अगर राइट बिफोर इट कि लेट्स से इस फॉल के दौरान लगा है तो तब भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई, ठीक है। अब उसमें होता उसकी वजह ये है कि जब प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं और यहाँ पे अगर वॉल्यूम लग जाए, दिस शोज दैट सेलिंग हैज बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस एकदम मूव करती हैं लेट से, और मेरे पास शायद वॉल्यूम उतना कन्विंसिंग ना हो, बट दैट इज वेयर द एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर कैन ड्रॉ द लाइन, कि वो देख लेता है कि यार यहाँ पे एग्जॉशन हो गई है,
यहाँ से अगर ऊपर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो इंड्यूस नहीं होगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकती हैं, ठीक है. So this is fine. Here you simply need to have some sort of moving average or trend line strategy. This generally means that the midterm bottom has been found and a new low becomes rather unlikely in the short term. अब यहाँ पे पैराबोलिक हाइस पे भी यही होता है कि अगर पैराबोलिक हाई लग जाए तो अनलाइकली होता है कि वो एकदम से ब्रेक करे, ठीक है, कि इन द शॉर्ट रन ब्रेक करे. इसी तरह अगर पैराबोलिक मेरे पास सेल ऑफ आ जाता है, दैट शोज मी द सेम थिंग कि यहाँ पे वो हुआ है, क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी जो है, क्या सॉरी, एक पैनिक सेल ऑफ हुआ है और एग्जॉशन हो गई है सेलर्स की, और मोस्ट लाइकली दिस मूव विल नॉट सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, ये जो लो बन गया है दिस इज अनलाइकली टू ब्रेक इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है. So this is what you have to keep in mind. Examples obviously आगे देखते हैं, then it will make much more sense. अब now this is Newmont Mining, obviously ये मार्टिन प्रिंक की बुक से लिया है. अभी हम इसके बाद रियल टाइम एग्जांपल PSX से देखेंगे, but this illustrates the fact very beautifully कि अब यहाँ पे देखो यूं एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में लेट्स से ये यूं मूव, ओहो, कैन आई erase this? ओके, नॉर्मल कोर्स में प्राइस कुछ यूं एक ट्रेंड लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है. नाउ ऑल ऑफ अ सडन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू आई हैव प्राइस एक्शन, स्मॉल प्राइस एक्शन ओवर हियर. नाउ ऑल ऑफ अ सडन प्राइस इस पॉइंट को हिट करने के बाद ओवर आर्च कर जाती है, ठीक है, कि एक नॉर्मल डिविएशन से बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर जाती है. और वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम थ्रू आउट इन लेवल्स पे लग रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही हम इस मूव पे आते हैं तो इट गोज क्रेजी, ठीक है. हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहा है इस जोन के ऊपर which is over here. So this is showing me that overextended prices were taken as an opportunity to trap people or like to sell off. अब यहाँ पे blow off कहते हैं इसको, ठीक है, to blow off. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर let's say in the recent times prices ऊपर आती भी हैं तो ये वाले लोग जो trap हुए हैं they would want to sell, ठीक है, दे वुड वांट टू सेल. अब अगर वो सेल करेंगे तो प्राइसेस बार बार इधर से हिट लेके नीचे जाएंगे और समवेयर अराउंड द सेम एरिया. सो दिस इज व्हाई वी हैव दैट मेंटालिटी कि अगर इस किस्म का मूव आता है तो इट इज अनलाइकली टू ब्रेक इन द वेरी रिसेंट टाइम्स, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ उसके बाद सेकंड चीज क्या आती है कि पैराबोलिक सेल ऑफ के बाद वॉल्यूम्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं बिकॉज सारा जो बायर इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट में फिल हो गया है, ठीक है. तो नीचे जो है वो प्रॉब्ली इंटरेस्ट जो है वो लाई नहीं करता. ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से गैप डाउन होती है, ठीक है, यूं नीचे की तरफ होती है और पहली सपोर्ट उसी ट्रेंड लाइन पे लेती है एंड देन ब्रेक्स बिलो दैट एज वेल. एंड इफ आई सी एट लुक एट वॉल्यूम्स हैव कंट्रैक्टेड एट इक्वली शार्प पेस द वे दे रोज, ठीक है. गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है, वो इक्वली शार्प पेस के ऊपर डिक्रीज भी हुए. तो प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स आर कंट्रैक्टिंग राइट आफ्टर अ पैराबोलिक ब्लो ऑफ, ठीक है. अब इसी तरह मेरे पास साइड पे जो है वो है सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है, जिसको पैराबोलिक सेल ऑफ भी कहते हैं. अब यहाँ पे देखो तो यूं एक मूव चल रहा है एकदम से ब्रेक डाउन और वर्टिकल ब्रेक डाउन, ठीक है. अब वॉल्यूम को अगर मैं देखूं, वॉल्यूम इस तरह जाते जाते यहाँ पे पीक हुआ है समवेयर अराउंड दिस एरिया, यहाँ पे पीक हुआ है, ठीक है. एंड देन प्राइस टेस्ट इट एज क्विक डबल बॉटम के तौर पे टेस्ट करती है एंड देन इट मूव्स अवे. वॉल्यूम को क्या हुआ है, वॉल्यूम इक्वली क्विकली श्रिंक कर गया. सो आफ्टर सेलिंग क्लाइमैक्स प्राइसेस श्रिंक. अब इसमें क्राइटेरिया क्या रखना है कि इंडिकेटर जो है वो अपने बॉटम जोन्स को टच कर रहे हो, ठीक है, और मूव जो है वो इस तरह, अब इस तरह का मूव हो इसको अब आप पैराबोलिक सेल ऑफ नहीं कहोगे, इस तरह का मूव है तो दिस इज अ पैराबोलिक सेल ऑफ और अ सेलिंग क्लाइमैक्स. इसी तरह अपसाइड मूव को, जी ये सेल वो आ गया पैराबोलिक अपसाइड आ गया, नहीं, पैराबोलिक अपसाइड इज लाइक दिस, ठीक है, कि शार्प डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेवल्स. क्या अब जिस तरह हम लोग PSX को देखें, PSX में जो अभी लास्ट फॉल आया था हमारे पास दैट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है, कि जो वीकली चार्ट्स पे.
So that low being broken anytime soon is unlikely. This is why when we're talking about three different criterias, three different क्या कहते हैं possibilities of the index move on the long term charts, तो उस पे हम लोग थर्ड वाले को इग्नोर कर रहे थे जो हमें कहता है कि अभी और फर्स्ट वाले को या थर्ड वाले को जो भी था वो कि और नीचे जाना है वो इग्नोर करेंगे. ठीक है, दिस इज अनलाइकली कि ऐसा हो. वॉल्यूम के साथ भी हमें सर्च थोड़ा सा नजर आया था, नॉट दैट कन्विंसिंग, बट इट वाज अ पैराबोलिक सेल ऑफ और अ सेलिंग क्लाइमैक्स. इट लास्टेड फ्रॉम आई थिंक फरवरी से स्टार्ट हुआ था सही से, और इट लास्टेड टिल, नहीं फरवरी से नहीं, मई से कंसिडर करें तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, दैट वाज द लास्ट बिट ऑफ इट. अच्छा, अब उसमें एक रियल टाइम एग्जांपल हमारे पास है जीटी वायर की. जीटी वायर दिस इज बैक इन आई थिंक 2017 वाला टाइम है. अब उसमें अगर हम देखें तो अब ये देखो अब हमने क्या बात की, हर शेयर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो अब ये नॉर्मली बहुत थिन वॉल्यूम में ट्रेड होता है. नाउ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर 140. 140 के बाद साहब ने डिसाइड किया यार मैं इस जोन में ऊपर नीचे मूव करता हूँ, मैं ट्रिगर करता हूँ सही से अपसाइड. ठीक है, यहाँ से ये यूं अपसाइड पे आना शुरू होता है और यहाँ पे जैसे ही वर्टिकल होना शुरू होता है, अब एक पॉइंट पे ये दिस इज कंप्लीटली स्टीप. ठीक है, दिस इज अ प्योर पैराबोलिक मूव. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट वॉल्यूम्स. अब जब कोई देख रहा है इसको, ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं यार ये तो अपनी नेचुरल जोन में मूव कर रहा है, नहीं यार जब तक यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल जोन नेचुरल जोन नेचुरल जोन, एवरीवन थिंक्स दिस इज नेचुरल जोन टिल हियर एंड लेट्स से ये वाली रेजिस्टेंस लेवल तक जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एवरीवन थिंक्स this is a normal move, and the moment we break above it people think wait this is going up, and they start to participate. ठीक है, and this participation leads to a rise in volumes. अब यहाँ से एक sharp upside move आता है and everyone thinks ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, and they keep buying it till the point the slope is practically vertical. ठीक है, अब ये एक मूव मेरे पास बन गया. सही है, अब उसके बाद क्या होता है, एकदम से सेल ऑफ आता है विच इज इक्वली शार्प वर्टिकल, और वॉल्यूम्स एकदम से कंट्रैक्ट कर जाते हैं. नाउ अ सेकंड मूव के अब उसमें जीटी वायर में ऑब्वियसली दीज आर वेरिएशंस, ये भी हमने अकाउंट फॉर करनी है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 320 से 240 तक का मूव, दैट इज अ लॉट. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दोबारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ये मूव करता है, अगेन अ शार्प vertical upside over here and over here. अब look at volumes. Volumes went crazy because people thought ये जो इसने ली थी ये तो करेक्शन थी, ये तो अभी और ऊपर जाएगा. ठीक है, they were true in their sense के for the timing, but it got exhausted right at that point. ठीक है, उसके बाद एक और मूव उसने किया which is again of parabolic nature, flat out upside पे. ठीक है, 340 से it went down as till 240 के सेम उस जोन में दोबारा आया. ठीक है, जो ये यहाँ पे ये सपोर्ट जोन थे, यहाँ पे वापस आया एंड लेट मी एक्सटेंड दिस, बड़ी अच्छी सपोर्ट लाइन है. खैर एनीवेज, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दोबारा एक स्लाइड सर्ज इन वॉल्यूम आता है, पैराबोलिक मूव है एंड देन वी गो डाउन. ठीक है, सो दिस हाई गॉट ब्रोकन आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर. ठीक है, तो साल तकरीबन ये होल्ड हुआ एरिया और फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, एंड लाइक दैट इवन ब्रेक डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग और वो फौरन से ब्रेक डाउन भी हो गया. So these kinds of move of vertical nature with sharp increase in volume on the top side especially indicate that prices are unlikely to stay over here. अगर वो natural deviation में है और उसके साथ high volume लग रहा है, that is great, that is what we want. But अगर इस तरह parabolic nature में कि over arch करके जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके top पे extremely high volume लग रहा है, then I'm not interested to buy it. Sorry. ठीक है, this is something which I have to completely avoid. ओके, चर्निंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन. चर्निंग क्या होता है, चर्निंग होती है लेट्स से आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप ऑफ प्राइसेस मूविंग लाइक दिस, एंड देन एक फेज आता है जहाँ पे प्राइसेस फ्लैट मूव करने लग जाती हैं और हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम होती है. सो दिस इज अ चर्निंग फेज. दिस शोज मी कि जो सारा बिल्डअप है वो यहाँ पे डंप हो रहा है. ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डम मनी को हैंड ओवर किया जा रहा है. तो अगर इस किस्म का मूव आता है तो दैट इज एन इंडिकेशन prices
can reverse from here. ठीक है, that is a strong indication of the fact that prices can reverse from here. अगर उसको churning, ठीक है, just churning. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो उसकी भी हम बात करते हैं. इसकी यहाँ पे फुल स्टॉप आता है. ठीक है, खैर, anyways, if high volume kick in over here and prices are moving in a small band, ठीक है, तो the rule is basically prices are not expanding but volume is expanding, so that is showing me कि यहाँ पे distribution हो रही है. This is generally after a strong build up and usually on daily to weekly charts. ठीक है, intraday पे इसको हम नहीं देखते but daily to weekly पे ये significant होता है. ठीक है, so this is one part, but this is also done on low volumes as well. ठीक है, लो वॉल्यूम्स में अगर इसी तरह प्राइस मूव करती है और यूं आता है तो यहाँ पे भी ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है. बट हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम में डिफरेंस ये है कि हाई वॉल्यूम में आई कैन बी इंक्लाइन टू से दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. लो वॉल्यूम में आई विल से कि यार रेंज ब्रेक होगी तो फिर बात करेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन प्राइसेस फ्लैट आउट आफ्टर अ हाई मूव. अब जिस तरह ISL की हम बात करें, ISL ने हमें अपसाइड मूव दिया, ठीक है, एंड देन इट इज ट्रेडिंग फ्लैट इन अ रेंज, सो दैट इज शोइंग मी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या चर्निंग हो रही है. वॉल्यूम को अगर मैं देखूँ तो वो चर्निंग नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अब अगर वो रेंज ब्रेक करता है लेट्स से ऑन द डाउन साइड और द अप साइड, देन आई वुड वांट टू ट्रेड इट either ways. Anyway, on the other hand, after a price rise, a congestion period starts. This is where volume tends to shrink. This generally shows exhaustion and a cool off. In this zone, both buyers and sellers are equally powered. Unfortunately, it's hard to predict beforehand how the congestion will be released. Once it does, direction for the trend is set. Say a high volume पे you have some sort of probability, but when we're talking about low volume, that shows us that यहाँ पे volume जो probability है मूव की, दैट इज ऑन द लोअर साइड. ठीक है, कि अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक होगा या अपवर्ड ब्रेक होगा, दिस इज हार्ड टू टेल बिफोर हैंड. वंस दैट हैपेंस कि ब्रेक हो जाता है एंड देन द डायरेक्शन इज बेसिकली सेट इन. सो एन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ड्रेसर इंडस्ट्रीज हैं. प्राइसेस को अगर हम देखें तो दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो ओवर आर्च कर रहा है. ओवर आर्च क्या है कि यहाँ पे ये इसका नेचुरल मूव था, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, उसके बाद फ्लैट रेंज में ट्रेड कर रहा है. पैराबोलिक नेचर के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और जब तक ये प्राइसेस फ्लैट आउट मूव कर रही हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, के पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही. व्हाट लेड टू दैट is that there is a sharp fall in prices right after it. चैनल के अंदर एंट्री उसको भी तोड़ के नीचे चली जाती है. ऑब्वियसली ये केस नहीं होगा कि हर दफ़ा ये हो, लेकिन द पॉइंट इज कि वंस दैट एरिया ब्रेक्स, most likely it's going to break down and it's going to be a powerful move. Now when I look at accumulation on the other hand, this is just like churning but accumulation side पे. एक डाउन ट्रेंड में अगर लेट्स से प्राइसेस इस तरह फ्लैट आउट हो जाती हैं and volume start to rise, this is a very strong sign of accumulation. ठीक है, अगर low volume पे होता है then you cannot pre-predict beforehand and say यार ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगा या ये डाउनवर्ड ही ब्रेक होगा. you have to wait for क्या कहते हैं a break to happen before you can trigger your trades. ठीक है, the likelihood of the break being upward is high. सही है, so this is just to tell you how to interpret congested zones. Now अच्छा, अब ये देखो, एक चीज़ याद रखनी है, ये PSX में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, कि प्राइसेस इस तरह अपवर्ड मूव करती हैं और एकदम से ये वेज सी फॉर्म होने लग जाती है राइट बिफोर द एंट्री इनटू द वेज या ऑन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द वेज. वॉल्यूम्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. ठीक है, कि पहले उस तरह हाई नहीं होते, यहाँ पे आके एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं. ठीक है, ये PSX के अंदर बहुत कॉमन है. जब हम लोग लाइव सेशन में और एग्जांपल्स देखेंगे इसकी वॉल्यूम की, तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से स्ट्रॉन्ग होती है. कि पहली पीक पे देखो, पहली पीक पे सेल ऑफ करना बहुत ईजी होता है क्योंकि सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, अभी तक उन्होंने ये वीकनेस नहीं देखी होती. ठीक है, तो अब ये जब वीकनेस आना शुरू होती है उसके बाद वॉल्यूम्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करने लग जाते हैं. अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे जो प्रीवियस गेन्स थे वो डाइजेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक चर्निंग विद लो वॉल्यूम, हम बेसिकली उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो यहाँ पे वॉल्यूम्स स्टार्ट टू डिक्रीज. दिस इज शोइंग मी दैट गेन्स आर बीइंग डाइजेस्टेड ओवर हियर. कूल ऑफ हो रहा है इंडिकेटर्स का एज यू डिस्कस्ड ओवर हियर, और यहाँ से ब्रेक जिस भी तरफ करेगा
वहाँ की डायरेक्शन सेट होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर ऊपर ब्रेक करता है दैट वुड मीन देयर इज अ कंटिन्यूएशन फेज, अगर डाउनवर्ड ब्रेक करता है आई वुड वांट टू ट्रिगर शॉर्ट्स। अब पहली दफा अगर लेट से यहाँ आता है, मुझे ऑब्वियसली चांस नहीं मिलेगा सेल ऑफ करने का, ठीक है, अनटिल अनलेस माय इंडिकेटर्स और अदरवाइज टेल मी सो। प्राइसेस नीचे आती हैं फिर ऊपर जाती हैं, अब डबल टॉप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन रही है, आई वुड वांट टू सेल ऑफ ओवर हियर, ठीक है। आई नो वॉल्यूम्स आर कंट्रैक्टिंग एज वेल, सो आई वुड वांट टू सेल ऑफ ओवर हियर अगेन ओवर हियर। तो दो तीन चांसेस मुझे मिलते हैं समवेयर अराउंड द सेम प्राइस टू एग्जिट। आई कैन ट्रेड शॉर्ट अगर मेरे पास इस तरह क्लियर डिफाइंड ट्रेंड लाइन हो और मैं इसके अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, इफ इट हैज अ वाइड इनफ रेंज, ठीक है। अगर नहीं है तो आई वुड स्टे क्लियर एंड वुड वांट टू सी अ ब्रेक बिफोर आई टेक अ ट्रेड। सो अगर नीचे ब्रेक होता है आई वुड वांट टू शॉर्ट, ऊपर ब्रेक होता है तो आई वुड वांट टू बाय अगेन। नाउ दिस इज माइक्रोसॉफ्ट चार्ट। अब ये चर्निंग का ऑपोजिट है कि प्राइस शार्पली ऊपर जा रही है और एक फ्लैट रेंज में आती है और वॉल्यूम एक्सट्रीमली डेड ड्रॉप करने लग जाता है। राइट बिफोर दैट जोन वॉल्यूम इज हाई विच शोज कि यहाँ पे एक पहले ही पैनिक पे पहले ही सेल ऑफ हो चुका है। दिस इज वेरी क्या कहते हैं सॉर्ट ऑफ अ मूव जिसको हम स्मार्ट मनी मूव कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास हाई वॉल्यूम ब्रेक यहाँ पे आ जाता है तो मैं टेंडेंसी मेरी ये होती है कि मैं सपोर्ट करूँ डाउनवर्ड ब्रेक को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम लो वॉल्यूम में आई हैव टू वेट फॉर अ ब्रेक। अगर मैं हाई वॉल्यूम की बात करूँ इट इज़ फार इजियर टू प्री प्रिडिक्ट कि क्या होगा कंपेयर टू जिस तरह यहाँ पे है या यहाँ पे है, कंपेयर टू लो वॉल्यूम्स। लो वॉल्यूम में अगर कुछ इस तरह का हो तो आई हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट फॉर अ डायरेक्शन टू सेट इन। सो दिस कंप्लीट्स बोथ के हाई वॉल्यूम पे और लो वॉल्यूम पे किस तरह मैंने उसको देखना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट फ्रॉम द सेशन। इसमें एक समरी सेशन है और समरी स्लाइड है बेसिकली। उसमें ये है कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने ऑब्वियसली की हैं कि वॉल्यूम इज़ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट calculated from price. Volume and price must agree. Divergence point to trend weakening and reversals. Price and volume can disagree only in parabolic highs and selling. That is कि हम जिस तरह बात करते हैं highs should be supported by high volumes and जब lows बन रहे होते हैं तो high volume से support करना चाहिए और फिर उसके बाद जो move आता है उस पर high volume होना चाहिए। ये parabolic highs और selling climaxes पे चीज़ अप्लाई नहीं होती। आइडियल recognition of that is to see how much the price is deviating from those levels, किस डिग्री का फॉल है या राइज है, इज इट वर्टिकल इनफ और नॉट, प्रीवियस बिल्डअप क्या है, फेज ऑफ चर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन हैव अ फ्लैट प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी चर्निंग में या उसमें घुसते हैं हम लोग एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में तो प्राइसेस फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। प्राइसेस फ्लैट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली ईएमएस प्राइसेस से कैलकुलेट होती हैं वो भी फ्लैट हो जाएंगी, इंडिकेटर्स इससे कैलकुलेट होते हैं वो भी फ्लैट हो जाएंगे। सो द ओनली थिंग that can give me good information is actually volume. So I have to look at volume when entering into such phases. Congestion breaks with rising volumes provide high probability trades. इसका मतलब क्या है कि let's say अगर मेरे पास यहाँ पे break off हुआ है और high volume induce होने लग जाता है तो that is a high probability short right over here. इसी तरह अगर यहाँ से हम देखें ये वाले मूव पे राइट ओवर हेयर वॉल्यूम्स आर एग्जॉस्टिंग एंड जस्ट बिफोर द जैसे ही ब्रेक होता है वॉल्यूम्स आर हाई, तो दिस इज गिविंग मी अनदर हाई प्रोबेबिलिटी शॉट। इसी तरह यहाँ पे देखूँ जैसे ये रेंज ब्रेक होती है हाई वॉल्यूम इज ट्रिगरिंग एंड दैट इज गिविंग मी एन एक्सट्रीमली प्रोबेबिलिस्टिक long. So you have to interpret volumes depending on where they appear and nature क्या है, price action क्या है, range कितनी बड़ी है और उस शेयर की हिस्ट्री क्या है। 10 million for one share may be enough, 10 million for another may only be a speck of its natural volume. So that is around that is it from this session, and once we are in the live session we'll look at much more examples. This is something which is very necessary to understand when looking at price patterns के किस तरह फॉर्म होते हैं, साइकोलॉजी क्या है, किस तरह ब्रेकआउट्स होते हैं, किस तरह सारी चीज़ें मूव करती हैं बेसिकली। So you have to you make sure that you go through this in like the next day or two, and after that we have another lesson जो वो भी मुझे शेयर करना है, that is on price patterns। वो price patterns में हम लोग we will spend a couple of time क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, रिवर्सल पैटर्न्स हैं, continuation patterns हैं,
स्मॉल पैटर्न हैं. हार्मोनिक्स हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज आई फाइंड देम यूजलेस. Apart from that, we have multiple stuff to look at, so make sure you get this done. I'm gonna see you in the next session, and obviously इसके लाइव सेशन के अंदर हम लोग जो सारी चीज़ें ऑब्वियसली एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको देखेंगे कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो PSX के अंदर आते हैं. हैव अ नाइस वन. अल्लाह हाफ़िज़.